Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students to this MCGM BTC online session. And in this session, students, we are going to learn about fraction. And under this topic fraction, we are observing comparing like fractions. तो बच्चों आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है कसर, और कसर में हम न सब कसरों का छोटा और बड़ापन यानी कि उसका मवाजना यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस यानी कि हम न सब कसरों का मवाजना। तो इसे समझने के लिए बच्चों यहाँ पर हम एक फिगर हमने ड्रॉ किया है। इस फिगर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस फिगर को आपने देखिए कि हमने इक्वली इसे हमने पार्ट किया है। कितने हिस्से किए हैं इसके? हमने 5 पार्ट किया है। ठीक है, तो 5 पार्ट को अगर हम कलर करते हैं यहाँ पर, तो आपको बताना है कि ये जो 5 पार्ट है, 5 पार्ट को में अभी हम कलर करने जा रहे हैं, तो कितना हिस्सा हमने कलर किया है इसको आपको ऑब्जर्व करना है पहले। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है कि कलर किया हुआ हिस्सा बड़ा है या जो हिस्सा ऐसा है जिसको कलर नहीं किया है वो हिस्सा बड़ा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला पार्ट है, इसको हमने कलर किया। इसको हमने किस तरह से लिखा है? सो आई राइट इट लाइक 1/5। व्हाई? बिकॉज दिस ऑल फुल फिगर इज पार्टेड इनटू 5 पार्ट। सो and color part is 1, so I am writing it like 1/5. Thereafter this part is colored. Now I am writing it like 1/5. Now this part is coloring, so this part is written like 1/5. Okay, so now these all parts which are on your screen is colored. So how many part of this figure is colored? So what I have to do here, I'm supposed to addition here. So I done that one here. So I got the answer here. 1/5 plus 1/5 plus 1/5 is equal to 3/5. So this is my answer, 3/5. Now the part which is already colored here is on your screen. So one part, this one, this is second part, this is third part. So these all part is calculated here. Okay, so this is 3/5 part is colored here. And now how many part are not colored here? So we also see that here. So 1/5 is this one and 1/5 is this one. So similarly, we do the addition of it and we got the answer 2/5 like this. So 2/5 is the answer here. So we are supposed to observe here that which part is bigger part and which part is lesser part. Okay, so on your screen there is a 3/5 and 2/5. So we are supposed to see which part is bigger part. So when I am looking on the screen, I am observing that this part is a bigger part. It means this blue part is a bigger part. This color part is the bigger part in this whole figure. Okay, so now I am going to see it here by this symbol, and you know that how we are supposed to read it. 3/5 is bigger than 2/5. Okay, so this part is a bigger part, means this fraction 3/5 is a bigger fraction than the 2/5. Okay, now we'll observe this figure. This figure, now you see that this figure is equally parted into 8 part. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so equally parted into 8 part.
And now, similarly, we are observing in this figure that how many part is colored in blue color and how many part is colored in cream color. Okay, so I am doing the color here. Okay, this is a cream color. Okay, and this one is a blue color. So you're supposed to see that whether this part is bigger part or this part is a bigger part. Okay, you are supposed to see this. So while you are observing this figure, so what is in your mind? You must now say that this part is a bigger part than this part. Okay, आप कहेंगे ना कि ये हिस्सा जो है तो बड़ा है इस हिस्से से, है ना, क्योंकि ये हिस्से में हमको नजर आ रहा है छोटा हिस्सा है और ये हिस्सा बड़ा है. ठीक है, तो हम इसे ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, सो वाइल हम इसे कसर में किस तरह से लिखेंगे, तो कसर में हम जब लिख रहे हैं इसे तो किस तरह से लिख रहे हैं, 3/8 इस तरह से हम लिख रहे हैं. ठीक है, कसर में हमने इसे लिखा 3/8. अब इसे कसर में किस तरह से लिखेंगे, तो हमने इसे लिखा है 4/8. ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हिस्सा जो है तो बड़ा है ना, और ये हिस्सा छोटा आपको नजर आ रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस सिंबल से कि सिमिलरली जैसे आपने ऑब्जर्व किया है उसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3/8 इज लेसर देन 4/8. ठीक है, इन दोनों का अगर हमने कंपैरिजन किया तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आई है कि दिस पार्ट इज लेसर देन दिस पार्ट. ओके, दिस पार्ट इज बिगर देन दिस पार्ट. ओके, लाइक दिस. सो in like fractions, the fraction which the greater numerator with the greater numerator is the greater fraction. क्या याद रखना है हमें यहाँ पर बच्चों, हमें यहाँ पर देखना है कि दो हम नसब कसरों में से जिस कसर का शुमार कुरिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर शुमार कुरिंदा कितना दिख रहा है, यहाँ पर शुमार कुरिंदा 8 दिख रहा है, यहाँ पर कितना है 3 है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 जो है तो बड़ा है 3 से, इसलिए ये कसर बड़ी होगी. ठीक है, सिंपल सा एक आइडिया है इसका, हमें याद रखना है कि दो हम नसब कसरों में, अब यहाँ पर नसब नुमा अगर हम देख रहे हैं तो 8 है, यहाँ भी नसब नुमा हम देख रहे हैं 8 है, यानी कि सिमिलर नसब नुमा है ना. तो सेम जब यहाँ पर जो है तो नसब नुमा है तो हम उसमें क्या देखते हैं कि ऐसी कसरों में जहाँ नसब नुमा जो है तो हम देखते हैं कि बराबर है और जिस कसर का शुमार कुरिंदा बड़ा होता है वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है. जैसे कि हम यहाँ पर 4/8 देख रहे हैं, ये क्या हो गई, ये बड़ी कसर हो गई इस तरह से. तो हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है और यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है इस फिगर को. और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस फिगर में हमने 2/3 पार्ट को क्लियर किया है. ठीक है, यहाँ पर हमने जो है तो ये ऑरेंज कलर इसे दिया है 2/3 पार्ट को. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 of the 3 equal parts of the strip is colored here. Okay, and now same you are supposed to observe in this figure. यहाँ पर हमने इस फिगर का कितने पार्ट में जो है तो यहाँ पर हमने इसको हिस्से किए हैं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो हमने 4 इक्वली पार्ट किया है इसके, और इसमें भी हमने 2 ही हिस्सों को कलर किया है. 2 of the 4 equal parts of the strip is colored here. Okay, and now see in this figure also 2/5. यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी हमने 2 हिस्सों को ही कलर किया है, जबकि इसके इससे हमने कितने किए, 5 किए. ओके, so you are supposed to see here 2 of the 5 equal parts of the strips is colored here. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले हिस्से में हमने कितने, पहले फिगर में हमने 2/3, देन सेकंड पार्ट में 2/4, देन थर्ड पार्ट में 2/5 हिस्सों को हमने कलर किया है. तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आती है, हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि 2/3 is whether bigger than 2/4 or
इज बिगर देन 2/5, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2/3 is bigger than 2/4 and 2/4 is bigger than 2/5. Why? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है कि if numerator of any of two fractions are equal, then the fraction with the smaller denominator is greater than the other fractions. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मसावी शुमार कुरिंदा वाली कसरों में जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो नसब नुमा क्या है, यहाँ पर छोटा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नसब नुमा बड़ा है, यहाँ नसब नुमा उससे बड़ा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है मसावी शुमार कुरिंदा वाली। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। तो एवरी टाइम हम देख रहे हैं कि शुमार कुरिंदा क्या है, 2 है। तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 से छोटा 4 है और 4 से छोटा क्या है, 3 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 3, ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर ये जो पहली कसर है हमारी 2/3, ये कसर क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल, then the fraction with the smaller denominator is greater than the other fraction. ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर मुख्तलिफ नसब नुमा वाली जो कसरें हैं उनका मवाजना हम यहाँ पर करेंगे। Comparing unlike fractions. So here's one example for you, 3/5 and 4/5. यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों की जिन कसरों के नसब नुमा और शुमार कुरिंदा दोनों मुख्तलिफ हो, इनका मवाजना करते वक्त हम क्या करते हैं, पहले इन्हें हम नसब कसरों में तहवील करते हैं। ठीक है, और फिर इनका मवाजना करते हैं। याद रखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इनके नसब नुमा भी अलग है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और शुमार कुरिंदा भी मुख्तलिफ है यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल, यहाँ पर हमने अभी देखा था इससे पहले, तो उस वक्त हमें यहाँ पर क्या समझ में आया था, देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द अदर फ्रैक्शंस, है ना। और उससे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर कोई बात इस तरह से हमें नजर नहीं आ रही है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो है तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमें सॉल्व करना होगी इसके लिए, ताकि हम अच्छी तरह से ये बात को यहाँ पर समझ लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कंपेयर करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 3/5 और 4/7 को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें याद रखना है कि जिन कसरों के नसब नुमा शुमार कुरिंदा दोनों मुख्तलिफ हों, इनका मवाजना करते वक्त पहले हम नसब कसरों में तहवील करते हैं। तो हम नसब कसरों में हमें तहवील करना है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए इस यहाँ पर इसे जो है तो 7 से ज़रब देना होगा और इसे जो है तो 5 से ज़रब देना होगा। ठीक है, इस कसर को। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हम इसे 3/5 इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर 3 × 7 करना होगा, अपॉन 5 × 7 करेंगे हम। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 × 7 इज इक्वल टू 21 एंड 5 × 7 इज इक्वल टू मिलेगा 35। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं 4/7 को। तो 4/7 को हमने काय से मल्टीप्लाई किया है, 5 से, है ना। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 × 5/7 × 5 इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 20/35। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मिल गया 20/35 एंड 21/35। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 21/35 इज ग्रेटर देन 20/35। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद है ना, जो हमने अभी आपके लिए रिपीट किया था इस वर्ड के, इस स्लाइड के स्टार्ट में ही हमने आपको जो है तो एक यहाँ पर सेंटेंस रिपीट किया था, उसकी वजह से आपको यहाँ पर याद होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हम नसब कसरे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 35 है, यहाँ भी 35 है ना।
21/35 है, 20/35 है, यानी दोनों जगह पर हम देख रहे हैं कि नसबनुमा क्या है यहाँ पर बराबर है ना। ठीक है, तो अब ऐसी हम नसब कसरों में हम देखते हैं कि शुमार कुनिंदा बड़ा होता है तो वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 21/35 इज ग्रेटर देन 20/35। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से कि 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आई होगी बच्चों, ऐसी उम्मीद है। हमें यहाँ पर याद रखना है, टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन वी कन्वर्ट देम इनटू देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर द सेम। ठीक है, ये बात याद रखना है हमें यहाँ पर कि जिन कसरों के नसबनुमा और शुमार कुनिंदा दोनों मुख्तलिफ हो, इनका मवाजना करते वक्त पहले इन्हें हम क्या करते हैं, हम नसब कसर में तब्दील करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया है ना, यहाँ पर हमने किया है ना ये दोनों स्टेप्स में। तो आपको इस तरह से ये बात यहाँ पर क्लियर हुई होगी कि इन्हें पहले हम नसब कसरों में तहवील करते हैं और फिर बाद में इसको हम यहाँ पर जो है तो इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर हम। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके हैं, विद द प्रॉपर सिंबल फ्रॉम बिगर लेजर और इक्वल इन द बॉक्स। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे 3/7 दिया हुआ है, सो 3/7 इज कंपेयर्ड विद 3/7। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों कसरों को देखेंगे हम तो कैसी नजर आ रही है। एक यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे इसके और न्यूमरेटर देखेंगे तो आपको एक ही नजर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज अ इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्वल का मार्क लगाया है, इक्वल का सिंबल यहाँ पर लगाया है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/8 दिया हुआ है और इसको कंपेयर करना है हमें किससे, इसे कंपेयर करना है 2/8 से। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो उस सूरत में हम क्या देखते हैं, याद होगा आपको, उस सूरत में हम क्या देखते हैं कि इसके न्यूमरेटर जो है तो वो कैसे है वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर मार्क क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8, है ना, 3 बड़ा है 2 से, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, 2/11 एंड 10/11। यहाँ पर आप देखेंगे आप सेम, आपको याद है जो ऊपर हमने क्वेश्चन में बताया है, यहाँ भी अगर आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं तो इक्वल है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे, ये सिंबल आएगा। ठीक है, 2/11 इज लेसर देन 10/11। ओके, लाइक दिस। And the next question, 2/11 compared with 10/11. So you see here, what will be the answer here? As we observe it on the first question. So let us observe this by doing this steps as we have already done. Okay, so as to compare to the questions which is looking on your screen there. So here is on your screen, students. So 5/15 and another one is 10/30. Okay, which is the question on your screen here. So while doing this question, while doing the comparison with 5/15, okay, 5/15 and 10/30,
30। सो 5/15 को करने पर हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों 5/8 दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसको कंपेयर किया है 5/9 से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर शुमार कुइंदा यकसा है, ठीक है, और नसबनुमा जो है तो छोटा है, ठीक है। तो जिस कसर का नसबनुमा छोटा है वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है ना। तो हमने यहाँ पर लिया, इसके लिए क्या लिया हमने यहाँ पर, इसके लिए हमने लिया 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9, इस तरह से, ठीक है। याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4/7 एंड 4/11। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये क्वेश्चन लेने पर 4/7 एंड 4/11 इसका कंपेयर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ गौर करने पर हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि शुमार कुइंदा यकसा यहाँ पर है, और ऐसी हालत में हम देखते हैं कि जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए जो है तो 7 इज बिगर देन 11, सो 4/7 इज बिगर देन 4/11। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या है तो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5/6 एंड 1/8। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, देखें, तो हमें क्या समझ में आएगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर कि 1/8 हमने लिया, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है इस तरह से, जैसे हमने बताया था आपको। ज़रब करेंगे हम यहाँ पर 3 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 3/24, और उसके बाद आप देखेंगे 5/6 को यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5 × 4/6 × 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 20/24, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कि 20 इज ग्रेटर देन 3, सो 20/24 इज ग्रेटर देन 3/24। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि 5/6 इज, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में हमने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। बाकी की जो सवालात है बच्चों आपको अपने तौर पर हल करना है, ठीक है। कोशिश करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।